تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ سٹیج کی ترتیب ہم نے اس طرح سے رکھی ہے کہ ہم نے چونکہ یہ جرگہ بلایا گیا ہے، بالکل ہم نے اپنے جو سینئرز اور جونیئرز کسی پر کوئی اس طرح سے نہیں رکھا کہ یہ محسوس ہو کہ ہم یہاں کوئی پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد ایبٹ آباد شہر کے جناب سردار فدا صاحب سے کہ وہ آ کے ان دو نکات پہ آپ کو بریف کریں کہ جن کے اوپر آج ہم نے ہاؤس اوپن کرنا اور آپ سے مشاورت لینی ہے اور اس پہ لائے عمل بنانا ہے۔ سردار فدا صاحب۔ سب سے پہلے میں اس مختصر کال کے اوپر آپ تمام لوگوں کی یہاں حاضری کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اس شہر جس کو کہ ہم سنتے جا رہے تھے کہ یہ شہر لاوارث ہو چکا ہے، اس شہر کے وارث ہونے کا ثبوت دیا ہے آپ میں سے ہر اس شخص نے جو کہ یہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں تمام سیاسی جماعتوں کا بے حد مشکور ہوں، جس میں جماعت اسلامی، جے یو آئی فے، پاکستان مسلم لیگ نون، اور ابھی آپ نے نعرے سنے پی ٹی آئی کے کارکنان جو کہ اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اس کے ساتھ عوامی اتحاد، ہزارہ عوامی اتحاد، شیر پاؤ گروپ، یہ تمام حضرات، اور اگر کسی کا نام مجھ سے باقی رہ گیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، تمام لوگ اپنے انیشیٹو پہ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں، اور یہ کاوش ہماری نہیں ہے بلکہ یہ ان کی ہے جنہوں نے آدھی آواز کے اوپر لبیک کہا اور اس شہر کے لیے، اس شہر کی بقا کے لیے اور اس شہر کے حقوق کے حصول کے لیے صدا بلند کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اب میں یہاں پہ چونکہ کافی دیر سے ہم لوگ بیٹھے ہیں اور یہاں پہ لوگ بھی کافی زیادہ ہیں اور گرمی بھی ہے، بات کو مختصر رکھتے ہوئے آپ تمام حضرات جو کہ یہاں پہ موجود ہیں، ایبٹ آباد کے جو آپ باسی اور ایبٹ آباد کے پاسبان اور وارث ہیں، آپ کے سامنے آج کے اس مشاورتی جرگے کے دو نکات پیش کرتا ہوں۔ یوں تو مسائل بے پناہ ہیں، اور اگر ہم مسائل کے اوپر، تمام مسائل کے اوپر شروع ہو جائیں گے تو شاید آج کا دن بھی کم پڑ جائے گا، لیکن فی الفور دو نکتے ایسے ہیں جس کے اوپر ہمیں اس ہاؤس کی، اس جرگے کی مشاورت چاہیے۔ پہلا نکتہ، آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج سے تقریباً سوا مہینہ پہلے ایوب میڈیکل کمپلیکس میں 9 افراد کی آنکھوں میں ایک انجیکشن لگایا گیا۔ اس انجیکشن کے نتیجے میں وہ 9 افراد اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، اور بات صرف یہاں تک نہیں رکتی کہ وہ اپنی بینائی سے محروم ہوئے ہیں، اس سے آگے 2 لوگ جو کہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں آج، 2 لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں آپریٹ کر کے نکال دی گئی ہیں، وہ اپنی صرف بینائی سے محروم نہیں ہوئے بلکہ اپنی آنکھوں سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اور میری سرفراز بھائی بھی ابھی نظر پڑی ہے تو میں پیپلز پارٹی کا نام لینا بھول گیا تھا، سرفراز بھائی معذرت، اور وکلاء برادری اور علماء اکرام کی جو ہے ایک بہت بڑی تعداد بھی یہاں پہ موجود ہے۔ ان 2 لوگوں کی تو آنکھیں نکال دی گئی ہیں، باقی لوگ انتظار میں ہیں، منتظر ہیں، ہو سکتا ہے مزید چند لوگوں کی آنکھیں نکالنی پڑے، لیکن المیہ یہ ہے
کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ہسپتال انتظامیہ نے اس واقعے کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی سب سے پہلے. اس کے بعد ہمارے صوبے میں ایک صحت کی وزارت ہے, ایک صحت کا نظام ہے, اور اس صحت کی وزارت کی جانب سے کوئی ٹس سے مس تک نہیں ہوا. کیا ہمارے وزیر صحت صاحب, کیا ہمارے سیکٹری صحت صاحب اور جو ایوب کو ہے, اس انکوائری کمیٹی نے اپنی جو انیشل رپورٹ ہے وہ بھی پبلک نہیں کی. اس کے بعد جب دوبارہ ایم ڈی صاحب سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ باقی تو سارا ہم نے فائنڈنگز جو ہے وہ کمپائل کر لی ہے, اس انجیکشن کے استعمال میں, اس کے اپلیکیشن میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوئی. اب احتمال یہ ہے, اچھا سوری, ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اس ہسپتال کی انتظامیہ کو, یہاں کے بورڈ آف گورنرز کو, یہاں کی جو وزیر صحت ہیں, جو ہمارے سیکٹری صحت ہیں, ان کو بھی. اب جب ہم نے اس جرگے کی اناؤنسمنٹ کی, اس کا اعلان کیا, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل وزیر صحت اور سیکٹری صحت جو ہے انہوں نے یہاں کا دورہ کیا ہے. یہ ہمارے اعلان کے بعد ان کا دورہ ہوا ہے کل, اور کل انہوں نے ہسپتال میں جو عمومی معاملات ہیں ان کو بھی دیکھا, اور ایک مریض جو کہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھا اس سے وزیر صحت نے ملاقات بھی کی ہے. لیکن یہ ملاقات 1.25 مہینے بعد جب ہم اس پہ مسلسل آواز اٹھاتے رہے, ہم اپنی گریہ و فریاد ان کے سامنے پیش کرتے رہے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, تو ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, تو ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. لیکن جب ہم نے, اور ہمیں یہ تانا دیا جاتا تھا کہ جی یہ فیس بک کی ہیرو ہے, یہ فیس بک کے مداری ہیں, ہمیں اس قسم کے القاب دیے جاتے تھے. ہم فیس بک کے اوپر یہ پیغام رسائی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نمائندوں تک ہماری آواز پہنچے اور وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں. ہماری فیس بک پہ آواز اٹھانے کا مقصد آپ کی تضحیک نہیں ہے, آپ کو آگاہی دینا ہے کہ آپ اس عوام کی آواز کو سنیں. لیکن چونکہ عوام کی آواز کی فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر سنوائی نہیں ہوئی, اور ہمیں تواتر کے ساتھ یہ تانے دیے گئے کہ ہم کوئی سوشل میڈیا کے مداری ہیں, تو ہم نے کہا کہ چلیں جی ہم آن گراؤنڈ آپ کو عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں. ہم نے ایک معمولی سی کال دی ہے. آج آپ اس ہال کی حالت دیکھ لیں, کرسیاں کم پڑ گئی ہیں اور لوگ کھڑے ہیں. یہ ایک معمولی سی کال ہے. یہ کال ہمارے نمائندوں کے لیے, ہمارے اداروں کے لیے, اور بالخصوص اداروں کے لیے, یہ جو کمشنر کا آفس ہے, یہ جو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے, یہ جو ڈی آئی جی کا آفس ہے, یہ جو ڈی پی او کا آفس ہے,
یہ جو واسا کا آفس ہے، ٹی ایم اے کا آفس ہے، یہ جو کینٹ بورڈ کا آفس ہے، ان اداروں کو میں ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ پبلک فنڈ سے تنخواہ حاصل کرتے ہیں اور پبلک فنڈ جس عوام کے آٹے، چینی، دال، گیہوں سے حاصل کیا جاتا ہے وہ عوام آج یہاں بیٹھی ہے۔ آپ ان کے پیسوں سے تنخواہ حاصل کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کمشنر صاحب 9 افراد جن کی بینائی چھین لی گئی، اس ریاست کے ایک ادارے نے ان کی بینائی چھینی، ان 9 افراد کے لواحقین کو اپنے دفتر میں بلاتے ہیں، دربار لگاتے ہیں۔ یہ بلی دا جیکسن کوئی ہمارا کمشنر ہے اور ہم 1937 میں ہیں، یا کہ ہم 2020 میں ایک آزاد مملکت میں اپنے پاکستانی شہری کمشنر کے سامنے پیش ہو رہے ہیں؟ اگر نظام انگریز کا چلے گا تو آزادی، ہمیں ایسی آزادی کا جو فریب ہے وہ منظور نہیں ہے۔ یہاں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ تو ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ لیکن جب ہمیں یہ تانا دیا جاتا تھا کہ جی یہ فیس بک کی ہیرو ہے، یہ فیس بک کے مداری ہیں، ہمیں اس قسم کے القاب دیے جاتے تھے۔ ہم فیس بک کے اوپر یہ پیغام رسائی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نمائندوں تک ہماری آواز پہنچے اور وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں۔ ہماری فیس بک پہ آواز اٹھانے کا مقصد آپ کی تضحیک نہیں ہے، آپ کو آگاہی دینا ہے کہ آپ اس عوام کی آواز کو سنیں۔ لیکن چونکہ عوام کی آواز کی فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر سنوائی نہیں ہوئی اور ہمیں تواتر کے ساتھ یہ تانے دیے گئے کہ ہم کوئی سوشل میڈیا کے مداری ہیں، تو ہم نے کہا کہ چلیں جی ہم آن گراؤنڈ آپ کو عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ ہم نے ایک معمولی سی کال دی ہے۔ آج آپ اس ہال کی حالت دیکھ لیں، کرسیاں کم پڑ گئی ہیں اور لوگ کھڑے ہیں۔ یہ ایک معمولی سی کال ہے۔ یہ کال ہمارے نمائندوں کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے اور بالخصوص اداروں کے لیے، یہ جو کمشنر کا آفس ہے، یہ جو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے، یہ جو ڈی آئی جی کا آفس ہے، یہ جو ڈی پی او کا آفس ہے، یہ جو واسا کا آفس ہے، ٹی ایم اے کا آفس ہے، یہ جو کینٹ بورڈ کا آفس ہے، ان اداروں کو میں ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ پبلک فنڈ سے تنخواہ حاصل کرتے ہیں اور پبلک فنڈ جس عوام کے آٹے، چینی، دال، گیہوں سے حاصل کیا جاتا ہے وہ عوام آج یہاں بیٹھی ہے۔ آپ ان کے پیسوں سے تنخواہ حاصل کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کمشنر صاحب 9 افراد جن کی بینائی چھین لی گئی، اس ریاست کے ایک ادارے نے ان کی بینائی چھینی، ان 9 افراد کے لواحقین کو اپنے دفتر میں بلاتے ہیں، دربار لگاتے ہیں۔ یہ بلی دا جیکسن کوئی ہمارا کمشنر ہے اور ہم 1937 میں ہیں، یا کہ ہم 2020 میں ایک آزاد مملکت میں اپنے پاکستانی شہری کمشنر کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اگر نظام انگریز کا چلے گا تو آزادی، ہمیں ایسی آزادی کا جو فریب ہے وہ منظور نہیں ہے۔ یہاں ذاتی بات نہیں ہے، کسی سے ذاتی بات نہیں ہے۔ سب بیٹھے، سب بھائی تشریف رکھے، سب بھائی تشریف رکھے۔ باسط بھائی پی ٹی آئی والے بھائی بات سنیں، ہیلو میری بات سنیں، آپ ہلو شفیق صاحب پلیز یار آپ ڈیکوریم کام رکھیں پلیز۔ آپ دیکھ سکتے ہیں
भाषण भाई खत्म करने अगर आवाज़ तुसा सारे गांधी है बराए मेहरबानी सारे अपनी अपनी जगह ते बह चलो सारे अपनी अपनी जगह ते बह चलो तुसा मेहरबानी करो सारे PTI के तमाम जिम्मेदारान जेड़े इत्थे मौजूद होन मैं उन्हें अगे दरखास्त कर सा कि अपने कारकुनां नाल मेहरबानी करके बैठाओ तुसा बोलने का मौका देता जो सी PTI के नकीबुल्लाह भाई हज़ारा डिवीज़न के PTI के सीनियर रहनुमाई यहाँ पे मौजूद हैं नकीबुल्लाह भाई वो अपने कारकुनान को मैं इस प्रेस क्लब में आने वाले तमाम हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जरगा हमारी तरफ से बुलाया गया है। यहाँ बराए मेहरबानी आप अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाएं। जो जो लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं मैं उन तक भी पहुँच चुका हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपने नंबर पे उन साजिशी लोगों को बेनकाब करूंगा और इंशाअल्लाह मैं उनकी सलवारें उतारूंगा। ये साजिश आप बराए मेहरबानी बाहर जाके जो साजिश करनी है बाहर करें, ये प्रोग्राम ना खराब करें। मैं आखिरी बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि ये शोर शराबा बराए मेहरबानी बंद कर दें। करे जी आखे आप हट दे या हटाए जो ना आखे कि तुम्हारा मतलब है यहाँ बराए मेहरबानी आप अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाएं। जो जो लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं मैं उन तक भी पहुँच चुका हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपने नंबर पे उन साजिशी लोगों को बेनकाब करूंगा और इंशाअल्लाह मैं उनकी सलवारें उतारूंगा। ये साजिश आप बराए मेहरबानी बाहर जाके जो साजिश करनी है बाहर करें, ये प्रोग्राम ना खराब करें। मैं आखिरी बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि ये शोर शराबा बराए मेहरबानी बंद कर दें। करे जी आखे आप हट दे या हटाए जो ना आखे कि तुम्हारा मतलब है कौन तुसी उन आदमियों पे कंट्रोल करो ना पहले बोल दो बाद में देर में जेड़ा काम ला के आए ना ना PTI है जो हमारा आदमी ना रोके काम PTI का तैयार करके एक नंबर कंजरा दी हुकूमत है मतलब हाल किसी नहीं मेरे भराओ जरा गल वो ना सुन किनो अपनी गल जारी करो ये यूथ विंग के जितने भी लोग बैठे थे खलते थे वो मेरी गल सुन किनो और ना बासत भाई सारे भरा जगह पे बैठ रहो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मलिक अमजद महमूद जिन्ना न्यूज़। नाजरीन हम इस वक्त खड़े हैं एबटाबाद प्रेस क्लब के बाहर और इस वक्त
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जा रही थी सिर्फ़ नाबीना लोगों के मसाइल को उजागर करने के लिए, और ये ख़बर उठाने का एजाज़ भी जिना न्यूज़ को असल रहा है कि जिन्होंने नाबीना न्यूज़ के फ़र्दन इंटरव्यू किए, और वो जब प्रेस क्लब के लिए यहाँ पर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो यहाँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सबुदास किया गया और उसके अमल को भी ख़राब किया गया। तो मेरे साथ खड़े हैं ह्यूमन राइट्स के KPK के चीफ शाहिद अकरम अब्बासी। इनसे पूछते हैं कि ये क्या हुआ और क्या सूरत हाल बनी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज सरदार फ़िदा ने जो इनिशिएटिव लिया था, मेरे साथ जो 9 बंदों की नज़र चली गई थी अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद ये एक बड़ा ग्रैंड जरगा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और दूसरे तबका फ़िक्र के लोगों को बुलाया गया। नहायत पुरअमन था। मैं बड़ा खुश था कि एबटाबाद के लोग जाग गए हैं और एबटाबाद के मसाइल इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म होंगे। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं आज के PTI के रवैये की भरपूर मज़म्मत करता हूँ, और उन्होंने जो हरकत की है वो तारीख़ के स्याह और राख में लिखी जाएगी जब भी एबटाबाद की डेवलपमेंट की बात की जाएगी। तो PTI ने आज ये मैसेज दिया है कि उनकी लीडरशिप जिंदाबाद, एबटाबाद के मसाइल खड़े लाइन, इनकी कोई परवाह नहीं है। तो ये जो आज PTI ने किया है हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, और पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से और हज़ारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जबरान पाशा की तरफ से मैं ये एलानिया तौर पे कहता हूँ कि हम हमेशा इंशाल्लाह एबटाबाद के मसाइल के लिए खड़े रहेंगे, इस पे बात करेंगे और सरदार फ़िदा का भी साथ देंगे, और हर वो बंदा जो इन मसाइल के लिए खड़ा होगा उसका साथ देंगे। ये इन 9 आदमियों की नज़र नहीं गई है। ये मुश्ताक गनी साहब आपकी भी जा सकती है, ये अली खान साहब आपकी भी जा सकती है, ये कमिश्नर साहब वज़ीर आला साहब आपकी भी जा सकती है, इमरान खान साहब आप भी 67 साल के हो गए हैं, आपकी भी नज़र जा सकती है। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस तरह का वाक़या आप लोगों के साथ भी हो, ताकि आप लोगों को इन गरीबों का एहसास हो। पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इन गरीबों के साथ है जिनकी नज़र गई है, और हम इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं। और बिलखुसूस मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फोरम से ये कहना चाहूँगा, इस चीज़ की अपील करूँगा कि इन लोगों का आगा खान अस्पताल में कराची या पिंडी आई ट्रस्ट में इनको चेकअप करवाया जाए, और इनको एक एक आँख ज़ाया होने के बदले हुकूमत वक्त 1-1 करोड़ का हर्जाना दे। क्यों? एक जहाज़ गिर जाता है, उसमें 500 मुसाफिर अगर शहीद हो जाते हैं, उनको तो हुकूमत देती है, यहाँ पे भी इन गरीबों का हक बनता है। क्यों? ये गरीब आप इन लीडरों के वोटर्स नहीं हैं, ये इस पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। ये इंसानी हकूक़ की बदतरीन मिसाल है, बदतरीन मिसाल है, इस कदर बदतरीन मिसाल है कि जिसको इंसान बयान नहीं कर सकता। इन्होंने एबटाबाद के इन 9 जिन लोगों की आंखें गई हैं, इनकी तौहीन नहीं की है, ये पूरे एबटाबाद हज़ारा KPK पाकिस्तान की तौहीन की है। वक्त का वज़ीर आज़म सोया हुआ है, वक्त का वज़ीर आला सोया हुआ है, और ये गरीब जिनकी नज़र गई है ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये जुल्म है और इसको बंद होना चाहिए। और मेरी तमाम आवाम से अपील है कि इन लोगों के लिए खड़े हो जाओ। ये अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के जो डीन और जो MD हैं, इनको फ़ौरन मअतल किया जाए और यहाँ पे नए ईमानदार लोग लेके आए जाएं। ये अस्पताल बीमारियों का और गंदगी का और करप्शन का गढ़ बना हुआ है, इसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। जी, लहजे के दुख और तड़प ने आपको बता दिया होगा कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन 9 नाबीना जो मरीज़ थे वो भी आए हुए थे, ताकि हमारी कोई सुनवाई हो सके, हमारी बात सुनी जा सके, हमारे दर्द को समझा जा सके। लेकिन बदनसीबी से ऐसा नहीं हुआ, और वो वैसे के वैसे धरे के धरे रह गए। लेकिन ये लगता है कि ये शवाला बुझेगा नहीं, ये जागेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए लोग उठेंगे और हुकाम बाला की नज़रें जागेंगी। मेरे साथ एक बहुत अच्छे लॉयर्स भी मौजूद हैं, और वो इस इशू पर बात भी उठाते रहे हैं माजी में। आइए उनसे भी जानते हैं कि आज उन्होंने इस सारे मामले को किस नज़र से देखा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम मोहम्मद इदरीस अवान, एडवोकेट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। पिछले 16 साल से इंसानी हकूक़ की जदोजहद में जो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, चाहे प्रोटेक्शन हो या वेमेन राइट्स हो या ह्यूमन राइट्स,
بڑے بڑے فورمز میں بولنے کا موقع ملا ہے، لیکن آج تو میں اس دکھ کو لے کے آیا تھا اس پریس کلب میں کہ 9 ایک شہریوں کی 9 ایبٹ آباد شہر میں 9 مریضوں کی آنکھیں ضائع کر دی گئی ہیں، اور وہ انجیکشن غلط تھا یا ڈاکٹرز غلط تھے. یہ ابھی تک یہ فیصلہ نہ تو گورنمنٹ نے کوئی اس پہ بات کی ہے. اس اہم ایشو پہ نہ تو صوبائی گورنمنٹ کی کانوں پہ جوں رہی ہے اور نہ ہی مرکزی حکومت نے کوئی ایسا سوال اٹھایا ہے. اور محکمہ صحت تو بالکل لمبی تان کے سو گیا ہے، کوئی نہ تو ضلعی انتظامیہ نے بات کی ہے نہ ہی کسی اور اسٹیک ہولڈر نے. تو سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ آج فدا حسین صاحب یہ چند ساتھیوں نے یوتھ کے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک پروگرام منعقد کیا، اور یہ ان مریضوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا پروگرام تھا. ایبٹ آباد کا جمع غفیر جو یہاں پہ جمع ہوا ہے پریس کلب میں، اور اس پروگرام کو ناکام کرنے کے لیے مجھے انتہائی افسوس ہے کہ حکومت نے شاید مشاورت سے ان لوگوں کو بھیجا ہے، یہاں پہ ان غنڈوں کو یہاں پہ بھیجا ہے اور پریس کلب پہ حملہ کروایا ہے. میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ ان 9 لوگوں کے ساتھ کاندھا ملا کے کھڑا ہوں. انشاءاللہ کسی صورت ان ڈاکٹرز کو، ان جیلی کمپنیوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ یہ جیلی کمپنیوں کے ساتھ ڈاکٹرز کی ملی بھگت ہے. یہ 2 نمبر دوائیاں یہاں پہ آ کے بیچتے ہیں، یہ کمپنیاں ان کو وزٹس کرواتی ہیں بیرون ملک کے، کمپنیاں انہیں حج اور عمرے کے ٹکٹس دیتی ہیں، کمپنیاں انہیں جو ہے گھر کے لیے سامان لے کے دیتی ہیں. ان ڈاکٹرز کو میں کھلے الفاظ میں نے آج جو ہیومن رائٹس کی تذلیل ہوتے دیکھی ایبٹ آباد کے پریس کلب میں، اس سے بڑی اور مثال کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم ان مریضوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہمارے پیشنٹس 9 بیچارے اتنی مشکل سے انہیں اٹھا کے یہاں پہ لایا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ان کے ساتھ یعنی کہ ہماری ہمدردی سارے شہریوں کی ان کے ساتھ ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس نیک کاز کے جب بات کرنے کے لیے لوگ آئے تو ان چند گنڈوں نے آ کے یہاں پہ حملہ کیا. چاہے گنڈے پی ٹی آئی کے ہیں چاہے کسی اور پارٹی کے ہیں. میرا تعلق بھی خود پی ٹی آئی سے، لیکن آج میں بہت مایوس ہوا ہوں کہ اس طرح کی پارٹی، یہ گورنمنٹ کی پارٹی کہ جو ڈاکٹر کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، جو یہاں پہ میڈیسن کی کمپنیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، اور آ کے اس نیک کاز کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے آ کے آج پریس کلب پہ حملہ کیا ہے. میں ایک بار پھر افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، اور میں کسی صورت اس کاز کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے تمام اداروں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اس میں شیریں مزاری صاحبہ کو بھی بھیج دیا ہے میں نے نوٹس. آج میں چیف منسٹر کو بھی میں نے لکھ دیا ہے، اور جتنے بھی ادارے ہیومن رائٹس کے میں نے سب کو آج لیٹرز جاری کر دیے ہیں. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی بھی نہ ہو انشاءاللہ ادریس امان ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور یہ سارے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. انشاءاللہ کبھی کسی صورت ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم کسی ڈاکٹر کو اور کسی جعلی کمپنی کو اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے کسی شہری کی جان لے، اس کی آنکھوں کی بینائی لے. ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ جو وکیل تھے بڑے معزز وکیل ہیں، اور انہوں نے اس کاز کو لیے رکھا اور آگے بڑھتے رہے، اور انہوں نے اپنے آئندہ کی بھی لائے عمل کا اعلان کر دیا ہے. اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جو میڈیسن مافیا ہے جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں. تو ناظرین، یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ایک نابینا وکٹم پیشنٹ جو ایبٹ آباد کمپلیکس کی درندگی کا شکار ہوئے ہیں. آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج کی اس پریس کانفرنس میں جب ان کو بلایا گیا ان کے مداوے کے لیے، ان کے زخم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن آج ان کے ساتھ کیا حشر ہوا. آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی، میرا نام احمد نواز ہے، میں شنکیاری کا رہنے والا ہوں. اور کسی کے ذریعے بھی پوچھا جائے، میں جناب عمران خان سے اور وزیر اعلیٰ سے اور یہاں کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے علاقے میں جا کے پوچھا جائے کہ میں نے اس دفعہ پی ٹی آئی کو ووٹ دلایا ہے، لیکن آج جو کام ہوا ہے بالکل پرامن طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بہت سخت افسوس ہوا. اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ وتیرہ رکھا تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی قائم رہ سکے گی. ایک بات اور، ہماری آنکھیں گئی ہیں اس کے اوپر. شروع دن سے ہیومن رائٹ والے جس دن ہماری آنکھوں کے اوپر پریشانی آئی تھی، یہ عباسی صاحب، یہ فدا صاحب، یہ کراچی سے محترمہ پیپل پارٹی کی یہ لوگ آئے ہیں، تو کیا بھائی آپ لوگ اس کی مدد کرنے کے بجائے اس میں گڑبڑ پیدا کر رہے ہیں؟ آپ غنڈہ گردی کر رہے ہیں. غنڈہ گردی سے تو میرے خیال سے ہمارا عمران خان اس کو تو میرے خیال سے پسند نہیں کرتا تھا. اگر یہ طریقہ کار رکھا ہے، یا جن لوگوں نے ان کو اس طرح معصوم بچوں کو، جوان لڑکوں کو بھیجا ہے، انہوں نے آ کے پریس کلب میں اس قسم کی حرکت کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد اگر اس طرح رہا تو لوگ میرے خیال سے پی ٹی آئی سے متنفر ہوں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ میں بتا دوں، اس قسم کی حرکتیں تو پہلے کبھی کی جاتی تھی.
जी नाज़रीन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और जिरगे में काफ़ी लोग आए हुए थे, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका थे, हर तबका है फ़िक्र से लोगों को बुलाया गया था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी सरदार फ़िदा साहब, शाहिद अकरम अब्बासी साहब, ह्यूमन राइट्स KP की चीफ़, और इसके अलावा जो मुहिब वतन हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से की गई थी। ना कोई सियासी पार्टी थी, ना कोई ये किसी किस्म का सियासी जलसा था। ये सिर्फ़ और सिर्फ एबटाबाद के मसाइल को उजागर करने के लिए, इन नाबीना लोगों के मसाइल को हल करने के लिए किया गया था। लेकिन बहुत अफसोसनाक तरीके के साथ कुछ नौजवान लड़के आए, नाराबाजी करते हुए आए और एक अच्छी महफ़िल को उन्होंने ख़राब किया और उन्होंने इसको सपुदास करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन नाबीना लोगों के ये मसले हल होंगे और बहुत जल्दी हल होंगे। ये इनके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। जो वकील साहब ने बात की थी कि जो मेडिसिन माफिया है उसके ज़रिए हुआ है, ये कम्प्लेक्स की जो माफिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ज़रिए हुआ है। इसकी खोज इंशाअल्लाह ताला ये एबटाबाद की आवाम लगा कर रहेगी। आइए इनसे भी पूछते हैं कि ये जो मुतासरीन हैं ये अपने लाए अमल का क्या ऐलान करते हैं। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं खलील मोहम्मद शबाब मेरली साहब का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। मेरा भाई है अफसर जिसकी आँखें दोनों आँखों से माजूर हुआ है। हम 2-3 दिन मज़ीद देखेंगे। हमने हर तरह की आइज़ाना अपील कमिश्नर साहब से, AC साहब से, सेक्रेटरी साहब से, यानी कि हमने हर अरबा इस्तेमाल किया है, उसका हमें मुतवातिर जवाब गलत ही मिलता रहा है। हम 2-3 दिन मज़ीद देखेंगे, फिर हम कम्प्लेक्स से रोड बंद करेंगे, देखेंगे हम किस तरह फिर डॉक्टर साहबान से हम मुकाबला करते हैं। जी नाज़रीन, तो फिर हम खुद करेंगे। जी नाज़रीन, इसी तरह के हमें तसरात मिल रहे हैं। नाबीना लोगों के जो वरसाएँ हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, दर्द दिल रखने वाले हैं, वो इसी तरह का अपना इंदिया दे रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में अपना ये इलाहा रोड बंद करेंगे। जी, हम रोड भी बंद करेंगे, हम धरना देंगे, तब ये औकाम बाला की आंखें जागेगी और हमारी दर्द की सुनवाई हो सकेगी। नाज़रीन, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जिना न्यूज़ ने भी इसी मसले को उठाया और जिना न्यूज़ की वजह से आज ये ख़बर पूरे हज़ारे में भी फैली कि ये लोगों के साथ क्या जुल्म हुआ, क्या इनके साथ सितम हुए, ख्वाह उसमें माफिया मुलविस है, ख्वाह उसमें डॉक्टर मुलविस हैं। लेकिन इन लोगों की तो आंखें गईं, इन लोगों के तो मसले बन गए। तो अब हम भी जिना न्यूज़ के चैनल से हम भी अपील करते हैं औकाम बाला से, वो जाग जाएं और होश के नाखन लें और आगे बढ़ें, इन लोगों की दर्द के ज़ख्मों पे अपना ठंडा हाथ रखें। जी नाज़रीन, जिस तरह हमने इससे पहले भी आपको बताया कि जो नाबीना अफराद जिनको दरिंदगी का भी निशाना बनाया गया एबटाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में और इनको गलत इंजेक्शन लगाकर इनकी आंखों का नूर ही छीन लिया गया। और जिस तरह पहले हमने ये बात भी की थी कि आज से गुज़िश्ता दिनों पहले ये जिना न्यूज़ को भी ये एजाज़ हासिल रहा है कि उन्होंने सबसे पहले एक बाज़ाब्ता तरीके के साथ इन मुतासरीन के साथ यकजहती का भी इज़हार किया, इनके साथ खड़े हुए, और आज उसी वीडियो की वजह से ये बाकी लोग भी जागे, बाकी लोगों की भी ख्वाब गफलत से जागे। और आज इस ज़मन में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही बातचीत शुरू हुई तो एक मैं समझता हूँ कि सोचे समझे मंसूबे के तहत इसको बदनज़म किया गया, बदनज़मी का शिकार हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर धरी की धरी रह गई, लेकिन इन मज़लूमों की आवाज़ भी नहीं सुनी गई। ये मज़लूम अभी भी प्रेस क्लब एबटाबाद में बैठे हुए हैं। अभी भी ये जिन लोगों ने सियासत करनी थी वो सियासत कर गए, जिन लोगों ने जाना था वो चले गए, लेकिन जो मज़लूम थे वो बैठे रह गए। लेकिन जिना न्यूज़ ने चूँकि रोज़ अव्वल से ही इनके दर्द को महसूस किया हुआ था, आज भी इनके दर्द को अपने दिलों में समोई हुई है, तो जिना न्यूज़ ने दोबारा जब इनसे रब्ता किया तो इनके अज़ाइम को जानते हुए आपको भी हम ये बताते चलें कि आने वाले वक्त में इन लोगों के अज़ाइम इस तरह के हैं कि ये अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलेंगे, ये रोडों पर धरना भी देंगे, ये मेन रोड को भी ब्लॉक करेंगे और जो माशरे का अमन है इसको भी ख़राब किया जा सकता है। तो ये हुकाम बाला जो कि बहुत बदनसीबी है, बहुत अफसोस के साथ हम ये कहना पड़ता है कि आज तक हुकाम बाला में से कोई भी नहीं जागा, कोई किसी ने भी आके अपना दस्ते करम दस्ते शफ़क़त इनके सरों पे नहीं रखा, इनकी दादरसी नहीं की और इनको इसी तरह बेशुतर बेमुहार छोड़ दिया गया। तो लामोहला कि जब आप किसी के साथ जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं और उसको छोड़ भी देते हैं, इससे
से बड़ा जुल्म इस ज़मीन पर नहीं होता। बात ये है कि इन लोगों ने भी जागना है। ये अगर बेचारे खामोश भी रहें, ये बेनूर आंखों वाले क्या जुल्म करेंगे, क्या ज़्यादती करेंगे, क्या हड़ताल करेंगे, लेकिन नहीं, ये माशरा भी अभी सोया नहीं हुआ। इनके अजीज़ व अक़ारब ये इश्तिआल में हैं। ये आने वाले वक्त में ये शायद के अपने ऐसे लाए अमल का ऐलान कर दें जिसको गवर्नमेंट भी संभालने पर ज़रा मुश्किलात का शिकार हो जाए। तो आइए जानते हैं कि ये क्या बोलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जुना न्यूज़ और उनके नुमाइंदों का कि जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े हुए, हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाई। आज फिर उसी सिलसिले में जो है ना, यहाँ प्रेस क्लब में एक जिरगा के तौर पे बुलाया गया, लेकिन अफसोस है कि मेरे PTI वाले दोस्त बाप भाई इन्होंने गलत किया। हम तो इस उम्मीद से आए थे कि ये हमारे साथ कदम पे कदम मिला के चलेंगे, हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखेंगे, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि बाकी काम तो छोड़े, सियासी नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। वो खुदा के बंदो, बस यही है तुम्हारा सब कुछ, सियासत ही है, इंसानियत नहीं है तुम में। मैं तो अपने एबटोनियन होने पे फ़ख्र था, मुझे एबटाबाद पे फ़ख्र है, रहेगा, और मुझे यकीन है मेरा एबटाबाद मेरा साथ देगा इंशाअल्लाह। इनकी बात नहीं है, जब ज़रूरत पड़ी तो मैं इंशाअल्लाह, हम आज निकलें कल निकलें, हमारे साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ 3 दिन के अंदर तो हम निकलेंगे और निकल के दिखाएंगे। या तो जान से जाएंगे या अपने मुतालबात पूरे करवाएंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, मैं आपको ये याद करवाता चलूँ कि ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिनमें इन मुतासरीन को भी बिलखसूस बुलाया गया था, और ये बड़े दूर दराज इलाकों से ये लोग आए हैं। पता नहीं किस तरह आए हैं, किस तरह नहीं आए, और रास्ते की सोबतें बर्दाश्त करते हुए एक उम्मीद पर आज पहुँचे हैं कि यहाँ पर आके हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखा जाएगा। लेकिन बदनसीबी के साथ इनका मजाक उड़ाया गया, इनको तकलीफ़ दी गई, इनके ज़ख्मों को नमक डाला गया। तो मेरे साथ दूसरे भी बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये आज के इस इनेकाद को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इनको बुलाया गया, तो ये क्या समझते हैं कि क्या इनके साथ मजाक हो रहा है या कोई हुकाम बाला जाग गया गफलत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इस उम्मीद से आए थे कि हमारे साथ कोई इंसाफ होगा, हमारे साथ कोई अच्छी बात होगी, लेकिन कुछ ऐसे नासर आए, उन्होंने चंद टकों के सिक्के की खातिर हमारे सारे पानी जो किए वो तो पानी फेर दिया। तो ये लोग आए तो ना हमारी बात कोई सुनी, तो हम तो ये कह रहे थे कि एबटाबाद वाले हमारी बात करें और हमारे साथ कोई इंसाफ हो। तो हम इसलिए आए थे इधर कि हमारे साथ इंसाफ हो और ये एबटाबाद वाले हमारे साथ चले। आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ भी होने वाला है। ये लोग जो शोर शराबा करके गए हैं, अगर इनमें इतनी गैरत है तो अपनी एक आँख हमें आतिया दे दे, तो हमारा किसी पे कुछ भी जोर नहीं है। तो ये शोर शराबा करके ये चले गए तो क्या होगा? हम तो वैसे के वैसे ही बैठे, एक ज़िंदगी हमारी आधी मरी हुई आधी जिंदा है, तो हम क्या करेंगे आगे? जी नाजरीन, इनके साथ भी रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं, उनके ज़ाहिर इश्तियाल तो फितरी बात है, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या बात करते हैं। जी, हमने ख़ुद भी जो है ना जी PTI को वोट दिए हैं, तो ये काम उन्होंने इंतहाई गलत किया है। ये मरीज़ बैठे थे, कम से कम इनकी सफ़ेद दाढ़ियों को देखते, इधर आए हैं, उन्होंने जी नारेबाजी शुरू कर दी। ये हम इनके साथ खड़े हैं, ये मज़लूम है। इंशाअल्लाह अगर 3 दिन के अंदर ये ना हुआ तो हम रोड में, ये तो बेचारे गए महरूम हो गए, ये तो अपनी जानों से, ये आंखें ही होती हैं इंसान की, ये तो अपनी जानों से चले गए हैं। हम रोड में इनके साथ खड़े हैं, ये मज़लूम है, हमारे भाई हैं। इंशाअल्लाह किसी मामले में हम किसी से पीछे नहीं, ये नहीं सियासी कोई भी आ जाए, अगर हमारा भाई भी उसमें होगा, हम इन लोगों के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। जी, इसी तरह ये जी, आइए इनसे भी पूछते हैं कि ये आप इधर आ जाएं सर, इनसे भी पूछते हैं कि ये अपने अज़ाइम का इज़हार किस तरह करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा अली ख़ान से ख़ास ताल्लुक़ है। मैं नाज़ो क़य्यूम के साथ उस ड्यूटी करता रहा हूँ अली ख़ान के लिए, मेरा PTI के साथ ताल्लुक़ है। मगर जब हम लोग, मैं मीरपुर यूनियन काउंसिल का रहने वाला हूँ, जब हम लोग हाल में आए हैं, हमारे साथ PTI के लोगों ने, यंग लड़कों ने, बच्चों ने इतनी बुरी हरकत की, अगर मैं अपने भाई के ऊपर ना जाता तो शायद वो और ज़ख्मी हो जाता। हालांकि हमारे हज़ारा डिवीज़न का एक
ज़िंदगी से, बुज़ुर्गों से ये एक चीज़ चल रही है कि जहाँ झिरगा चला जाए कत्ल माफ़ हो जाते हैं। उन लोगों ने इतना नहीं सोचा कि यार मरीज़ बैठे हुए हैं और वो सियासत चमका रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, यार तुम लोग आओ किसी तरीके से बात करो। हमें उनसे ये चाह थी कि यार हमारी वो करेंगे, बेमात पुरसी करेंगे, बेमात पुरसी के बजाय उन लोगों ने बात सुनो हमारे साथ नाज़ेब हरकत की है। और फिर हम अपील करते हैं कि हर तरह की एसी साहब से, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, डॉक्टर साहबान से हर तरह की हमने गुजारिश की है। 3 दिन मज़ीद हम लोग देखते हैं। इमरान साहब से भी हम अपील करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील करते हैं इस चीज़ का नोटिस लें। अगर नोटिस ना लिया 3 दिन बाद हम बादशाह कम्प्लेक्स के आगे रोड बंद करेंगे और हम अपनी जान मौत के मुंह में देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। फिर हम डॉक्टरों को देखेंगे, डॉक्टर कौन है, हम कौन है, हम मीरपुर के रहने वाले लोग हैं। उनको पता चलेगा कि यहाँ के लोग और हमारे साथ उन लोगों ने मुआहदा क्या किया था, उनके साथ हम ऐसा काम करेंगे वो याद रखेंगे। आप डीसी साहब के पास भी गए थे? हाँ जी, हम डीसी साहब के पास 3 दफ़ा हम लोग आए हैं और उन्होंने बात सुनो हमें टाइम देते रहे हैं फलाने। फिर उन्होंने एमडी साहब को बुलाया है, जस्ट डॉक्टर ने आंखों का ऑपरेशन कराया उसको बुलाया है, यानी कि टाला मटोली लालीपॉप हमें दे रहे थे। बस हमें यह पता चला, अगर फर्स्ट टाइम हमें यह कह देते, हम इन्हें पेशावर ले जाते, कराची ले जाते, ये आंखों से नबीना ना होते। उनके लालीपॉप में हमारे भाई की और हमारे बुज़ुर्गों की आंखों से वो महरूम हो गए हैं। जी नाज़रीन, इसी तरह बिल्कुल अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद अगर इनको मिल जाती इन मरीज़ों को तो वापस इनकी बेनूर आंखें नूर वाली हो सकती थीं, लेकिन वो काम की गफलत की तरह जिस तरह बढ़ती गई उनमें वाकई इन बेचारों का बहुत शदीद नुकसान हुआ जी। तो ये नाज़रीन, मेरे साथ ऐसे भी एक मुतासर बैठे हुए हैं जिनके हौसले को दाद न देना बहुत ही एक कमबख्ती होगी, मुनासिब बात नहीं होगी। इनकी दाद, इनके हौसले को ये नाज़रीन एक ऐसे मुतासर हैं कि जो अपनी आँख गंवा के भी, एक आँख से ये देख रहे हैं दुनिया को, एक आँख गंवा के भी आज भी ये हौसले के पैकर बने बैठे हैं, हौसले के पहाड़ बने बैठे हैं। ये अपने बाकी साथियों को भी हौसला दे रहे हैं, ख़ुद भी हौसले से हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या अपने जज्बात का इज़हार करते हैं। बात दरअसल ये है, मेरा नाम अहमद नवाज़ है। इससे पहले मैंने कई दफ़ा जिना टीवी वालों ने, इन्होंने चैनल वालों ने बड़ी मोहब्बत की हमसे और हमारी बात को आगे बढ़ाया है। खुदा की रज़ा के लिए कोई किसी किस्म की कोई चीज़ हमसे नहीं ली है, खुदा की रज़ा के लिए इन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन बात दरअसल ये है, वज़ीर आला साहब, मैं कहता हूँ वज़ीर आला साहब और पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहता हूँ कि अगर ये सूबा हज़ारा होता, आज ये सूबा हज़ारा होता तो ये 9 आदमियों के पास सूबे हज़ारे का वज़ीर आलम भी आला भी आता और वज़ीर सेहत भी आता और सब की सब इंतज़ामिया आती। लेकिन हम हज़ारे के रहने वाले हैं, हमें तुम इग्नोर तो कर रहे हो। लेकिन देखो ये सूबा बनना है, ये सूबा बनना है, ये सूबा बनने के लिए तुम खुद ही कोशिश कर रहे हो। ये सूबा नहीं बना तो ये इसी तरह हम मार खाते रहेंगे, हम इसी तरह मुश्किलात में रहेंगे, हमारे आदमी इसी तरह अंधे होते रहेंगे और मरते रहेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई पुरसान हाल नहीं होगा। ये सूबा हज़ारा बनना है, इसका हक भी है और इसके हक इस वजह से भी है कि फाटा को तुमने उधर मिला दिया है। अब ये जो इलाका है ये पहले से 1901 में सूबा था, इस सूबे का हक जो है वो अब मिलना ज़रूरी हो गया है, वरना हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं है। न वज़ीर आला साहब आप सुन रहे हैं, न वज़ीर सेहत साहब सुन रहे हैं, न इमरान खान साहब ज़्यादा गौर कर रहे हैं। शायद उन तक हमारी आवाज़ पहुंची नहीं है या उनका मशहूरों ने पहुंचाया नहीं है। लेकिन बात दरअसल ये है कि अब हम अपना हक लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे। ये सूबा हज़ारा बन के रहेगा और इन अंधों का, इनका जो तकलीफ़ है इनको मतलब है इसके इनको कंपनसेट करो। हम नहीं कहते कि आप किसी को टर्मिनेट करो या ना करो, हम ये कहते हैं कि इनको कंपनसेट करो, इनका साथ दो, इनका मतलब हक दो। क्यों कि इनकी गलती नहीं है, इनको पहले तो उनकी आँखें, उसके बाद टाइम इतना डिले कर दिया। अगर 2 दिन के अंदर पेशावर पहुंच जाते
तो हमारी आंखें बच जाती। ये डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन जो थी हम उसको निकाल देते, लेकिन इन्होंने अपनी बात को छुपाने के लिए कभी कहते थे पीप पड़ी हुई है, कभी कहते थे कि कुछ और पड़ा हुआ है, और इस तरह करते करते 9 दिन गुजर गए और वो तमाम जो असर जो जहर था वो आंखों में कर गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरी पूरी आंख निकाल दी, मेरे चेहरे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसका 336 का केस होता है, 14 साल की कैद है ये। अगर अब अफसरान नहीं सुनते, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखते, तो इंशाअल्लाह ताला ये बात जो है कोई तो आएगा इंसाफ वाला, और वरना ये जो लोग हैं, ये आज जिन लोगों के लोग यहाँ पर नुमाइंदा बन के पार्टियों के आए थे, जिन लोगों के लोग आज अपने अपनी पार्टी को नुमाइंदगी देने के लिए आए थे, उनको इस तरह सबोताज किया और आन के नारे लगाए। ये कोई सियासी बात तो नहीं थी, ना कोई इलेक्शन कमीशन का ऑफिस था, ना इलेक्शन हो रहा था कि पीटीआई जिंदाबाद या मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कोई किसी किस्म का जिंदाबाद किसी ने नहीं कही। लेकिन अफसोस है कि चंद लोगों को किसी सरकर्दे ने भेजा और कहा कि जाओ इसको सबोताज कर दो। सबोताज तो कर दिया, लेकिन इस किसको किया? 9 अंधे आंखों से जो मतलब मुतासर हुए उनको नुकसान दिया, लोगों का नुकसान तो नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा हुआ है। और हम वो लोग हैं पीटीआई वालों, हमने वोट पीटीआई को वोट दिया था, ये जिन लोगों ने वोट पीटीआई को दिया था, आज यार तुमने ये शर्मनाक काम किया है, बड़ा अफसोस होता है। तुम्हें खुद तो कम से कम सोचना चाहिए था। अगर तुम्हें भेजा गया था तो तुम आके कहते भाई हम साथ देंगे, हम अपने वज़ीर आला को कहेंगे। तुम्हारा काम ये था कि तुम कहते कि हम वज़ीर सेहत से कहेंगे, हम पीटीआई के लोग हैं, हम इंशाअल्लाह ताला काम कर दो। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, ये दिलों की आवाज़, दुख से भरी हुई आवाज़ें आप यकीनन सुन रहे होंगे। जिना न्यूज़ ने हमेशा इंसानियत, दुख और इनके साथ चलते रहे और आगे भी चलती रहेगी। आप इंशाअल्लाह ताला नाजरीन हमें हर फोरम पे अपने साथ पाएंगे, हम इनके साथ होंगे, शाना बशाना इनके साथ खड़े होंगे। हम औकाम बाला को भी ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश करेंगे, हम इनके साथ भी रहेंगे, ताकि जिस दिन इनको तिब्बी इमदाद मिल गई, औकाम वालदैन की तरह होते हैं, जैसे ही उनका दस्ते शफ़क़त, दस्ते करम इनके सरों पे हुआ तो जिना न्यूज़ खामोशी से अलहदा हो जाएगी। कैमरामैन सरदार अली के साथ डॉक्टर मलिक अमजद महमूद, जिना न्यूज़, एबटाबाद प्रेस क्लब, एबटाबाद।